Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to start and consider our basic difference between 4-stroke and 2-stroke engine. कि 4-stroke इंजन और 2-stroke इंजन में क्या हमारे डिफरेंस होते हैं. So first of all, we have to make a differentiate column, and after that we have to make some rules. And under the point of first and very basic point is what कि अंडर 4-stroke इंजन अगर हम बात करें तो एक पावर स्ट्रोक में, यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक में यहाँ पे 2 रोटेशन ऑफ क्रैंक होता है. 2 रोटेशन ऑफ क्रैंक यहाँ पे होता है. इज इट ऑल राइट? कहने का मतलब क्या है कि एक पावर आउटपुट वाली जो साइकिल है, जो आपको एक पावर मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है? वो आपको पावर मिल रही है सक्शन पे. ठीक है, तो वो सक्शन पे जो पावर मिल रही है उस दौरान 2 रोटेशन आपके क्रैंक का हो चुका होता है. एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक में दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. केवल एक रोटेशन ऑफ क्रैंक होता है. इज इट ऑल राइट? एंड दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि यहाँ पे 4-स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक आपको जब मिलता है उस दौरान 2 रोटेशन क्रैंक के हो चुके रहते हैं, तब आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है. बट यहाँ पे एक रोटेशन आपके क्रैंक का होता है और उसी दौरान एक पावर स्ट्रोक आपको मिल जाता है. मतलब एक रोटेशन में एक बार आपको पावर मिल जाएगा, बट यहाँ पे 2 रोटेशन होने के बाद तब आपको एक बार आपको पावर मिलेगा. इज इट ऑल राइट? आफ्टर दैट योर सेकंड डिफरेंस is what? One thermodynamic cycle is complete in 4-stroke or 2 revolution of crank, or only the power stroke is obtained from 2 revolution because of the turning movement obtained is not uniform and bigger size of flywheel is required. That means in 4-stroke engine, bigger size of flywheel is also required, and after that you have to write some statement that one thermodynamic cycle is completed in 4-stroke or 2 revolution of crank. Is it all right? Or only one power stroke, or only one power stroke, or only one power stroke is obtained from what? 2 revolution. Because of this turning movement, because of the turning movement obtained is not uniform. टर्निंग मूवमेंट जो आपका obtained होता है, obtained is not uniform. Is it all right? And bigger size of flywheel is required. That means under 4-stroke engine you have to require a bigger size of flywheel, and after the 2 revolution of the crank you have to got a 1 power cycle. Is it all right? Okay. And here under the 2-stroke engine, if you want to write some statement that, so you have to write that one thermodynamic cycle is completed in 2-stroke or in 1 revolution of crank, or hence there is 1 power stroke for every revolution. Turning moment obtained is very uniform. Due to this, a small size of flywheel is required. So for 2-stroke engine, you have to require a very small flywheel. Is it all right? That means here 1
one thermodynamic cycle is completed. One thermodynamic cycle is completed. One thermodynamic cycle is completed in two-stroke. In here in two-stroke. Here in two-stroke. Is it all right? Here in two-stroke or in one revolution of crank. One revolution of crank. Or hence there is one power stroke, or hence there is one power stroke, okay, for every revolution, for every revolution turning moment obtained is uniform. Turning moment obtained is uniform. Okay, due to this a small size of flywheel is required. And this line is very important, my dear friends. Is it all right? This line is very important for you कि 4 स्ट्रोक इंजन में बिगर साइज का फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वहीं पे अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात की जाए तो 2 स्ट्रोक इंजन में व्हाट स्मॉल साइज ऑफ फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट होती है. और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन एंड एसएससी जेईई आल्सो. इज इट ऑल राइट? ये पॉइंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड और बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो फॉर वन पावर स्ट्रोक इन एवरी 2 revolution power produced for the same size of engine will be lesser, or for the same power engine is bulkier or heavier. दैट मीन्स क्या कि जो 4 स्ट्रोक में जो आपका इंजन डेवलप किया जाता है, जो बनाया जाता है, वो ड्यू टू हैवी साइज ऑफ योर फ्लाईव्हील उस इंजन की साइज क्या हो जाती है, उस इंजन की साइज आपकी बड़ी हो जाती है. दैट सिंपल. बस केवल यही एक सिंपल सी बात है कि ड्यू टू heavier size of your flywheel, your engine gonna be designed as a heavier in form. Okay, so under the 4 stroke engine you have to write that for one power stroke, okay, in every 2 revolution power produced for the same size of engine, power produced for the same size of engine will be lesser. यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूस होगा वो कम भी होगा, और फॉर द सेम पावर इंजन इज हैवियर. दैट मीन्स यहाँ पे जो इंजन होगा, इंजन इज हैवियर. इज इट ऑल राइट? यहाँ पे इंजन आपका हैवियर भी डिजाइन होगा, और साथ में यहाँ पे जो पावर डेवलप्ड होगा वो क्या होगा, वो कम होगा. ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपका 2 रिवॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है ना, बट सारा स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा. यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे केवल 2 रिवॉल्यूशन के जगह पे आप लिखोगे 1 रिवॉल्यूशन लिखोगे. उसके बाद ये पावर प्रोड्यूस फॉर द सेम साइज ऑफ इंजन विल बी, ये भी पूरी लाइन आपकी सिमिलर रहेगी, ये भी पूरी लाइन आपकी सिमिलर रहेगी, लाइक दैट.
एंड लेसर के जगह पे क्या रहेगा, मोर रहेगा। लेसर के जगह पे क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, मोर रहेगा। और फॉर दैट केस योर इंजन इज नॉट हैवियर, दैट मींस योर इंजन इज कॉम्पैक्ट एंड लाइटर। ठीक है, सो फॉर दैट केस योर इंजन इज व्हाट, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, कॉम्पैक्ट और लाइटर। ओके, सो दैट विल बी अ बेसिक डिफरेंस। ओके, ये आपके बेसिक डिफरेंस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंड अगेन we go we have to go forward for some other difference. Again हम कुछ other difference को consider करेंगे and that will be our fourth point. Okay, that will be our fourth point. Okay, सबसे पहले हम स्पेस को लेते हैं, कुछ स्पेस को हम जनरेट करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉरवर्ड फॉर आवर डिफरेंस। ओके, उसके बाद हम डिफरेंस के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ स्पेस को डेवलप करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर व्हाट, द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिजाइन सम रो। ओके, आप सबसे पहले तो कुछ रोज को डिजाइन कर लीजिए। आफ्टर दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, एंड देन हियर योर डिफरेंस कॉलम। डिफरेंस कॉलम को आपने डिजाइन कर लिया। उसके बाद अब आपको आगे बढ़ना है किसके लिए, डिफरेंस के लिए। योर वेरी फोर्थ डिफरेंस। अब फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं। इज इट ऑल राइट, फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं अंडर 4 स्ट्रोक इंजन एंड फोर्थ डिफरेंस की बात करेंगे अंडर 2 स्ट्रोक इंजन। ओके, सो यहाँ पे आप कंसीडर क्या करोगे कि ड्यू टू 1 पावर स्ट्रोक, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ड्यू टू 1 पावर स्ट्रोक, ड्यू टू 1 पावर स्ट्रोक, यहाँ पे केवल एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है इन 2 रिवॉल्यूशन। इज इट क्लियर, इन 2 रिवॉल्यूशन आपको एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। इज इट ऑल राइट, दैट मीन्स यहाँ पे वियर और टीयर जो प्रोसेस होगी, यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ वियर एंड टीयर इज व्हाट, वियर एंड टीयर इज व्हाट, लेस। क्योंकि 2 रिवॉल्यूशन में आपको एक पावर मिल रहा है, तो इसीलिए वियर एंड टीयर की जो प्रोसेस होगी वो माय डियर फ्रेंड्स क्या होगी, बहुत कम होगी। सो इन दिस केस here requirement of lubrication is less, क्योंकि लेस कम वियर एंड टीयर होगा तो कम आपको लुब्रिकेशन की जरूरत भी पड़ेगी। बट यहाँ पे आपका पावर स्ट्रोक हर साइकिल में मिल रहा है। ठीक है, ड्यू टू 1 पावर स्ट्रोक इन एवरी साइकिल, ड्यू टू 1 पावर स्ट्रोक, ड्यू टू 1 पावर स्ट्रोक in every cycle, okay, in every cycle you have to got your 1 power stroke. That is more wear and tear, more wear and tear is developed, more wear and tear is developed. That means more requirement of lubrication. दैट मीन्स फॉर दैट केस लुब्रिकेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, वो बहुत ही ज्यादा होगी। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंसीडर आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट अंडर 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। सो एम्प्लॉयड विद वॉल्व मैकेनिज्म, यहाँ पे वॉल्व मैकेनिज्म के कारण सारा काम होता है, वॉल्व मैकेनिज्म के कारण सारा काम होता है। ठीक है, मतलब इनलेट वॉल्व आउटलेट वॉल्व उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कारण ही यहाँ पे वर्क होता है। ओके, एंड यहाँ पे जो वर्क परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे पोर्ट मैकेनिज्म के कारण, यहाँ पे पोर्ट लगे होते हैं। ठीक है, वॉल्व नहीं लगे होते। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट मैकेनिज्म से आपका फ्यूल सप्लाई होता है या फिर जो गैसेस होती हैं वो बाहर फेंकी जाती हैं। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर योर 6 स्टेटमेंट कि व्हाट इज योर 6 बेसिक डिफरेंस। 6 नंबर का जो 6 नंबर का डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे जो थर्मल इफिशियंसी माय डियर फ्रेंड्स रहेगी, थर्मल इफिशियंसी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रहेगी। क्यों यहाँ पे ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फ्यूल इनटेक है, फ्यूल इनटेक नॉर्मली सेम
टू स्ट्रोक की तरह ही रहेगा, बट फ्यूल इनटेक दैट मीन्स फ्यूल वेस्टेज जो है वो बहुत ही कम होगा। फ्यूल जो वेस्टेज है, यहाँ पे जो फ्यूल वेस्टेज है वो यहाँ पे बहुत ही कम रहेगा। इज इट ऑल राइट? फ्यूल वेस्टेज इज लेस, ड्यू टू दिस here thermal efficiency is more. Okay, and here also thermal efficiency is very less because fuel wastage is more. Is it all right? And what is the next difference? Your next difference is nothing but about the mileage. यहाँ पे जो माइलेज रहेगा वो माइलेज आपका क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। मतलब 1 लीटर में ही आपकी जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो 70 किलोमीटर अगर चल रही है तो यहाँ पे वो केवल 40 किलोमीटर ही चलेगी। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे फ्यूल की जो वेस्टेज है वो कम हो रही है, दैट मीन्स यहाँ का माइलेज क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ का माइलेज क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ का माइलेज आपका बहुत ही कम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे फ्यूल की जो वेस्टेज है वो ज्यादा हो रही है। सो बाय दिस वे यू हैव टू कंसीडर योर बेसिक डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। इस तरीके से आप डिफरेंस को स्टडी करते हो रिगार्डिंग योर 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। ओके, इज इट क्लियर? योर वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज नथिंग बट योर व्हाट? ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंस क्या है कि आपका जो क्रैंक है किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे अरेंजमेंट भी एक बार देखो, दैट विल बी योर सिलेंडर विच इज फिक्स्ड। ये सिलेंडर आपका फिक्स्ड होता है। इस सिलेंडर के अंदर क्या होता है? पिस्टन लगा होता है, दैट विल बी योर पिस्टन। ओके, मतलब दैट विल बी योर सिलेंडर, दैट विल बी योर सिलेंडर एंड दैट विल बी योर पिस्टन। ओके, ये पिस्टन लगा होता है, सेकंड लिंक है। आफ्टर दैट यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड इस तरीके से लगा होगा, कनेक्टिंग रॉड लगा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्रैंक लगा होगा, दैट विल बी योर क्रैंक, एंड क्रैंक यहाँ से एक फिक्स एक लिंक से अटैच होगा, दैट विल बी योर, फॉर दैट केस दैट विल बी योर कनेक्टिंग रॉड एंड दैट विल बी योर क्रैंक। ये है आपका क्रैंक, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इनलेट आउटलेट वाल्व लगे होंगे या फिर पोर्ट लगे होंगे एज पर 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। यहाँ से फ्यूल सप्लाई होगी, यहाँ से स्पार्क प्लग से आग जनरेट होगा, फायर जनरेट होगा, कंबशन होगा, गैसेस डेवलप होंगी, गैसेस प्रोड्यूस होंगी और प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन पे। पिस्टन अब आपका नीचे आने की कोशिश करेगा। पिस्टन जब नीचे आएगा तो ये आपका क्रैंक कुछ इस तरीके से अब आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा कनेक्टिंग रॉड, तो उसके कारण ये क्रैंक जो है रोटेट करके यहाँ तक आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये पिस्टन के अप एंड डाउन से आपका जो क्रैंक होता है उस क्रैंक का रोटेशन इस तरीके से 360 पे इस तरीके से क्रैंक का रोटेशन होना डेवलप होता है, ठीक है। जब आपका कनेक्टिंग रॉड हियर फॉर दैट केस व्हेन योर कनेक्टिंग रॉड लाइक दैट, व्हेन योर कनेक्टिंग रॉड लाइक दैट एंड दैट विल बी योर क्रैंक, तो इस अपर पार्ट को बोला जाता है टॉप डेड सेंटर, and where your connecting rod as this point and that will be your crank, तो इस पॉइंट को बोला जाता है बॉटम डेड सेंटर। इज इट ऑल राइट? और इस तरीके से आपका क्रैंक रोटेट करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक बार पावर आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे एक बार जो पावर आउटपुट मिल रहा है, पावर आउटपुट, और केवल एक बार जो मिल रहा है, उस दौरान ये जो क्रैंक है माय डियर फ्रेंड्स ये 2 बार रोटेट कर रहा है, 2 बार आपका क्रैंक रोटेट कर रहा है। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपके 4 स्ट्रोक के। बट यहाँ पे जो पावर आपका आउटपुट हो रहा है, एक बार जो पावर आउटपुट हो रहा है उस दौरान आपका जो क्रैंक है केवल एक बार ही रोटेशन कर रहा है। और ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी किसकी? 2 स्ट्रोक इंजन की। So here my dear friends, for your under the 2 stroke engine your crank gonna be rotate only one time and power is output, okay, and under the 4 stroke engine your crank gonna be rotate with 2 times and single power output is happen, and by this way you have to analysis over what, you have to analysis over thermodynamic scale। thermodynamic scale पे हमने एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि हमारा जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील की साइज हमें क्या बड़ी साइज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके कारण हमारा अब जो इंजन भी जो डिजाइन होगा वो क्या होगा? हैवियर होगा। इंजन के हैवियर के डिजाइन होने के कारण और केवल 2 रोटेशन में एक ही बार पावर मिलने के कारण यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हैपेंड हो रहा है।
इसीलिए आपको बड़ा साइज का फ्लाईव्हील लगाना पड़ रहा है। दैट मींस व्हाट कि टर्निंग मोमेंट ऑब्टेन्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। डिसकंटिन्यूएशन कैसे मिल रहा है कि 2 बार रोटेशन में 1 बार पावर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे पर रोटेशन पर पावर मिल रहा है, पर रोटेशन 1 पावर मिल रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन है, यहाँ पे जो टर्निंग मोमेंट है यहाँ पे कंटिन्यूएशन है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन है। सो ड्यू टू दिस discontinuation you have to install your flywheel with a very heavy weight। heavy weight का flywheel होगा तो जिस साइकिल में पावर नहीं जनरेट होगी और अगर एक्सेस में पावर पहले से बचा है तो वो उसको स्टोर करेगा। अगर लाइटर वेट का फ्लाईव्हील होगा तो वो स्टोर करने में सक्षम इजीली नहीं होगा। तो आपको इसीलिए हैवियर फ्लाईव्हील डिजाइन करना पड़ता है, जिसके कारण आपका इंजन भी क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। ओके, एंड ड्यू टू द डिसकंटिन्यूटी एंड ड्यू टू द ओनली सिंगल पावर आउटपुट अंडर 2 रिवोल्यूशन, आपका वियर एंड टियर भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो आपको लुब्रिकेशन भी बहुत कम अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे वॉल्व मैकेनिज्म ऑब्टेन, वॉल्व मैकेनिज्म के द्वारा ही यहाँ पे बेसिक फंक्शनैलिटी को पाया जाता है। यहाँ पे जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फ्यूल का वेस्टेज यहाँ पे बहुत ही कम होता है, जिसके कारण फ्यूल का वेस्टेज अगर बहुत कम होगा तो माइलेज भी आपकी बहुत ज्यादा होगी। इसी का पूरा रिवर्स में आपका 2 स्ट्रोक में एनालिसिस चलेगा। इज इट ऑलराइट? Okay, so thank you so much and all the best for your preparation, my dear friends. And in next lecture we are going to consider the thermodynamics terms। Okay, next lecture में हम thermodynamics terms and properties के बारे में स्टडी करेंगे कि what is the basic thermodynamics terms and what will be the basic property of the thermodynamics, कि thermodynamics की basic properties क्या होती हैं और thermodynamics terms क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको स्टडी करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।